This recording will be available on the YouTube also. Okay, now the question with us is today for the essay is that unemployment, a growing challenge and unemployment rate in India. So do you think that unemployment is increasing? Yes. हाँ जी, आप लोग बताओ क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है? ओके, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट फर्स्ट? अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? Define unemployment. Uneducated causing of unemployment. मीनू सागर, मुझे आपका नहीं सही लगा, शहनाज सही, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. लेस, नो वर्क नो जॉब नहीं, इट्स लेस वर्क. Eligible persons are not getting the job. Yes. Jobs are less, but the seekers are more. Yes. Rate of unemployment, that is. What else? Okay. Tell me what are the, you can say, reasons of this unemployment? What are the reasons behind this? Okay, growing population. Hmm. Right now, competition, population, corruption. Yes, improper education system is. Okay, how can, okay, I am giving you some of the notes for this. Please note it down. What is unemployment? It is, please note it down, most critical issue. That the government has to address. Fine. ये है तो क्रिटिकल इशू ही है जिसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना है. ठीक है. और हम क्या कहेंगे? Is it visible to you people? My whiteboard? Students, my whiteboard is visible? Okay. I said we will define it as, first क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले हम unemployment को define करेंगे. We will write a paragraph on that. And then what we will do is, we will write what are the causes behind this and what are the solutions behind this problem. Fine. So हम क्या कहेंगे, unemployment is the most critical issue that the government has to address. उसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं the rate of unemployment is increasing. हर दिन जो है क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ रहा है. Rate of unemployment is increasing.
at an at a, you can say, more than double the speed. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आ रही है इससे? यंगस्टर्स को, यूथ को। क्योंकि जो लोग, तो देखो, एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रही है तो प्रॉब्लम तो, मैंने बोला है, इट्स अ मोस्ट क्रिटिकल इशू that the government has to address. Rate of unemployment is increasing at a मतलब at a double speed. फाइन। यूथ जो है उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हम क्या लिखेंगे? यूथ जो है, दैट इज गेटिंग एक्सटेंशियल डिजास्टर। मतलब एग्जिस्टेंशियल जो है उसको डिजास्टर हो रहा है। यूथ इज most critical issue that the government has to address. It is increasing. फिर हमने बोला यूथ जो है is the, now is it not visible to you? Yes. तो हम ये लिखेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। हम इसको increasing at an alarming rate, you can write it out. Unemployment is increasing at an alarming rate. Alarming rate means दैट इज द रेट, मतलब जिसमें हमें क्या एक सिग्नल मिल चुका है कि ये जो है ये प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है अभी। सो हमने बोल दिया कि ये इंक्रीज हो रही है, ये जो प्रॉब्लम है वो एक क्रिटिकल इशू है जिसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना है। ठीक है। फिर हमने बोला इसका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, यूथ जो है सबसे ज्यादा उसको प्रॉब्लम आएगी। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू। फिर इसका मतलब गवर्नमेंट को क्या करना है?
sort out okay, due to increasing population. Okay, first we are writing just the introduction. We will be clearing the introduction part only, जिसमें मैंने बोल दिया था कि है क्या. मैंने बोला कि this is the problem which is a critical issue and government needs to address. Write down the first point. आपने इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, ठीक है. उसके बाद मैंने बोला रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री इज ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग रेट. यूथ जो है, जो यंगस्टर्स है, दे आर द वन हु आर existential disaster for the nation in the coming years. So what government needs to do right now, note down the point. Government should introduce steps to check the jobless and the unemployment. What the government has to do, government has to introduce some steps so that they can check jobless people and the unemployment ratio. Is it clear how you have to write the introduction? I'm asking, are the 4 points clear to all of you what I have said? Okay, so now the question arises, हम क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, फिर क्या कहेंगे, बट जो भी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, बट दोज मेजर्स अपीयर्स टू हैव फॉलन. Government, write down the steps. Government introduce steps to check job losses and unemployment, but those measures appears to have fallen short due to the deliver the desired results. मतलब जो वो स्टेप्स हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ गए हैं इस चीज को देखने के लिए कि क्या डिजायर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है. गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स उठा रही है वो नहीं मेजर कर पा रही है एग्जैक्टली कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आ रही है. गेटिंग माई पॉइंट? हैव यू रिसीव्ड द पॉइंट प्लीज? I said government needs steps to check job losses and unemployment. But those measures appear to have fallen short to deliver the desired results. So this will be the introduction. What government has to do is government has to address, assess the unemployment at multiple levels. Have you all cleared with the introduction part? Yes, you people have to write it down. I am saying the topic, I am discussing one topic that unemployment is increasing and what are the reasons behind this problem and what is the solution behind the problem. Okay, now we will be discussing, is the introduction clear? If clear, say yes, everyone. Please. Is the introduction clear?
Okay, now let's discuss what are the reasons. Now we are going to discuss the major reasons for the growing unemployment rate. So now I need points from you people, that what are the reasons behind the unemployment? Increasing population, more machine intensive techniques, lack of opportunity. Robot working. You can say technological era. In this, computer is working behind 4 people at least. Lack of skills, increasing population, lack of awareness. सही है. People are not aware. Computer took place in place of people. Computer has replaced people. ये यूज कर सकते हैं. फिर उसको डिफाइन भी कर सकते हैं. हर पॉइंट को आप क्या करोगे, लोगे, फिर उसके आगे उसको यू कैन से एक्सप्लेन करोगे. People are having less knowledge. People are having limited knowledge. Lack of interest for internship. More competitiveness. People not get the desired job. डिजायर्ड जॉब क्या, लोगों को जॉब ही नहीं मिलती, डिजायर्ड जॉब की तो बात ही नहीं आती. हैरी. शहनाज, वेरी नाइस. शी हैज रिटन गुड पॉइंट्स. इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम. हाँ, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज है. लोग कभी भी इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल ही नहीं होते आफ्टर द एजुकेशन ऑल्सो. यू कैन से दैट उसमें क्या है कि लाइक स्टिल दे हैव द बुकिश नॉलेज बट दे आर नॉट हैविंग द स्किल्स. तो इस तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. हाँ. और high expectations of the candidates. I don't say that the candidates are highly expecting. I would I would say that this jobs ही नहीं है. I'm not saying desired jobs नहीं है. Desired jobs होता है कि अगर किसी को उसके लेवल पे जॉब मिल रही है, बट यहाँ पे तो जॉब ही नहीं है. Lack of good education system in the rural areas. Yes, रूरल एरियाज जो हैं इनको बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया गया हुआ है. ये आप प्रॉब्लम
अब बता रहे हैं उसके सॉल्यूशंस, बट वी आर ऑन जस्ट द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द रीजंस. लेट मी गिव यू सम ऑफ द रीजंस, प्लीज स्टार्ट जॉटिंग इट डाउन. फाइन. हमने बताने हैं अब रीजंस. सो द फर्स्ट रीजन इज, we will write economic growth of the country is unable to keep pace with the population is growing. Is it visible? So first point you have to write is इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री की वो अनेबल है, मतलब इज इट विजिबल? हमने क्या कहना है, जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है उसके साथ मैच नहीं कर रही है. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन. Please note it down in your notebook. The first reason behind it. Pace, write down pace with the rate at which the population is growing. To keep pace with the rate at which the population is growing. लिख लिया आप लोगों ने? Economic growth of the country is unable to keep pace with the rate at which the population is growing. This would be the first point. And now what is going to be the second point? Write down India is an agrarian economy. Agrarian economy का क्या मतलब होता है? India is an agrarian economy. इसका मतलब होता है that economy which is based upon agriculture. And hence majority of population
पॉपुलेशन में यू पी यू डाल लेना. लेट मी करेक्ट. India is an agrarian economy. तो यहाँ पे है इकोनॉमी. इंडिया इज एन agrarian Okay, write down. India is an agrarian economy and hence majority of population is dependent on the agricultural sector. India is an second point is India is an agrarian economy and hence majority of the population is dependent on the agricultural sector. वो क्या है, agrarian economy है और बहुत सारे जो लोग हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, और हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. सॉरी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे बता दिया. और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द रेनफॉल. और आउटडेटेड मेथड्स आर यूज्ड, मतलब उस पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो क्या है, वो आउटडेटेड हो चुका है. उसमें जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं हम, दे आर आउटडेटेड, दे आर डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल, ट्रेडिशनल practices and generates seasonal employment. हम बता रहे हैं कि रीजन ऑफ इंडिया में यू कैन से अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है. हमने पहले तो बता दिया कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ बैलेंस ही नहीं कर पा रही है. ठीक है. सेकंड थिंग है, हमने बोल दिया कि हमारी जो सेक्टर है, इंडिया जो है, उसमें जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है. और एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर जो है वो मेनली डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर, आउटडेटेड टेक्निक्स के ऊपर, ट्रेडिशनल मेथड यूज हो रहे हैं और उसके कारण क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से हम कहेंगे द मोस्ट impacting factor is the you can say climate changes which are highly erratic. ठीक है. क्लाइमेट चेंजेस जो है वो क्या है, दे आर हाईली इरेटिक. तो क्लाइमेट चेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा इरेटिक है. और फार्मर्स को क्या होता है, farmers feel distress. Farmers feel distress. ठीक है. हमने ये कर दिया, सेकंड पॉइंट हमारा हो गया. इज द सेकंड पॉइंट क्लियर, बताओ. ओके.
Now another point will be, the third point will be what? आई सेड अबाउट द एग्रीकल्चरल सेक्टर. हमने बोला एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता है. एग्रीकल्चर में हमने उसको डिफाइन कर दिया कि वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है. क्लाइमेट के ऊपर ओल्ड टेक्निक्स यूज हो रही है. इरेटिक मीन्स उल्टा, उल्टे पुल्टा, और हाईली इलेक्ट्रिक. क्लाइमेट का पता ही नहीं चलता. आप आज बाहर यू कैन से कुछ रख दो, सुबह उठोगे तो बारिश हो जाती है, वो स्पॉइल हो जाता है. और हमारी तो क्रॉप फार्मर्स की तो क्रॉप्स फील्ड में पड़ी हैं, वो बेचारे कैसे उसको प्रिजर्व करें, because it is unpredictable. No doubt weather forecasting is there, but still weather forecasting is not 100%. So that is why farmers उसके कारण क्या है. हाँ जी, इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट आपने क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन के लिए जैसे मैंने 4-5 पॉइंट्स दिए वो लिख के, देन यू नीड टू राइट दैट देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड दिस प्रॉब्लम. फर्स्ट प्रॉब्लम आप बताओगे इकोनॉमी. इकोनॉमी जो है उसका रेट उस हिसाब से नहीं डेवलप कर रहा है जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है. इम्बैलेंस हो रहा है. इसके कारण क्या है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है. पॉपुलेशन नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. सेकेंड पॉइंट आएगा एग्रीकल्चरल सेक्टर. फिर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे. नाउ द थर्ड पॉइंट आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन, प्लीज सी. दैट इज inadequate attention paid to the industrial sector. Third point I'm writing, don't worry. It's inadequate attention paid to the industrial sector. मेरा थर्ड पॉइंट कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. इनएडिक्वेट होता है बहुत, मतलब जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, लिमिटेड सा ही है. सो दैट इज द रीजन. अब हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे. हाउ वी विल एक्सप्लेन. हम कहेंगे 1950s एंड 1960s में क्या था. चाइना एंड इंडिया स्टार्टेड इकोनॉमिक जर्नी टुगेदर. ठीक है. इंडिया ने और चाइना ने अपनी इकोनॉमिक जो जर्नी थी वो इकट्ठी स्टार्ट की थी, फ्रॉम ऑलमोस्ट द सेम लेवल. बट इंडिया ने क्या किया, इंडिया फोकस ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन.
which was the need of an hour. ठीक है, इंडिया ने फोकस करा ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर जो कि नीड ऑफ एन आवर थी, वेयर एज चाइना ने क्या किया, चाइना boost its मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या मतलब है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इंडिया क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर requires investment in research and development। सॉरी, ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर। प्लीज नोट इट डाउन, फिर मैं इसको इरेज करूं। हमने बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं हमारा इग्नोर्ड है। Yes, it is in the paragraph format. We are writing a point and then we are explaining that point in 4 to 5 lines. ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हमारे जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, क्यों? 1950s और 1960s में क्या था कि इंडिया और चाइना ने अपना इकोनॉमिक जर्नी इकट्ठे स्टार्ट किया था एट ऑलमोस्ट द सेम लेवल। इंडिया ने फोकस कर लिया ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्योंकि वो नीड ऑफ एन आवर थी। चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मींस इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको करा बूस्ट। क्यों, इंडिया क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इंडिया को उस टाइम उसके पास पैसा नहीं था कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा सके, ट्रेन कर सके अपनी मैन पावर को। इसलिए हैव यू रिटन दिस, हैव यू रिटन? ओके, आई एम क्लियरिंग इट। साथ साथ नोट किया करो, रिपीट नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने आगे भी तो चलना है बच्चे। ट्रेनिंग ऑफ द मैन पावर, और उसके साथ ही पॉइंट है कि और क्या करना पड़ता है, प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एनर्जी,
and expensive machinery। नहीं बेटा जी, हाँ ये थर्ड पॉइंट ही है। कोई बात नहीं, हमें सब याद नहीं रहना है, हम जितना याद करते हैं उसमें से कुछ ही हमें एग्जाम तक याद रहता है। सो इट इज बेटर दैट वी शुड हैव मैक्सिमम पॉइंट्स। मतलब प्रोक्यूरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, कि हमें खरीदना भी तो है रॉ मटेरियल, तभी हम इंडस्ट्री में कुछ उसका बनाएंगे। सो प्रोक्यूरमेंट मींस अरेंजिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, बाइंग ऑफ द रॉ मटेरियल। यस, ठीक है। एक्सपेंसिव मशीनरी भी चाहिए थी। which was which was inadequately available with India। So that is why हमने क्या बोला कि ये सारी चीजें चाहिए थी, ये चीजें जो थी वो इंडिया नहीं कर पाया उस टाइम पे, इसलिए उसने अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर जो है यू कैन से फोकस किया। ठीक है, विजिबल नहीं है अभी भी? इज इट नॉट विजिबल? जस्ट से यस और नो, इट इज। सो नो इश्यूज। प्लीज राइट इट डाउन। Okay. Have you run? Okay. All of you? अब हम क्या पॉइंट लिखेंगे? रीसेंट अब हम नेक्स्ट लिखेंगे कि रीसेंट हमारे पास कितना यू कैन से अनएम्प्लॉयमेंट में, अब स्टैट्स बताएंगे, इसको अंडरलाइन कर लेना। अब अवेलेबल विद इंडिया भी लिख सकते हैं, इंडिया के पास अवेलेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, रिसेंट सर्ज इन अनएम्प्लॉयमेंट recent surge in unemployment in India। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रिसेंटली आई है। हम लिखेंगे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी। सेंटर फॉर
वो सेंटर जो कि इकोनॉमी को मॉनिटर करता है उसको कहते हैं हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी, दैट इज CMIE। क्या कहता है कि 31 मिलियन जो लोग हैं, 31 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पैसेज में लिखेंगे हम। हमने बता दिया कि रिसेंट कितनी अनएम्प्लॉयमेंट आई है, उसमें हमने बोला कि जो हमारी सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इकोनॉमी है वो कहती है 31। यस, नेक्स्ट पैसेज में सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इकोनॉमी कह रही है 31 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड है। अब हम आएंगे कि इसके रीजंस क्या है। क्या रीजन है? एजुकेशन सिस्टम। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या एजुकेशन सिस्टम कह रहा है। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, हमने बोल दिया कि recent surge in unemployment in India, उसको अंडरलाइन करो। You will say that unemployment in India has increased a lot from the last few decades, and Center of Monitoring Economy has said that it has increased and reached to 31 million. That means 31 million population is the one which is unemployed in India, those who are not able to have their bread and butter। और उसके पीछे उसने बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक रीजन है। क्या एजुकेशन सिस्टम रीजन क्यों है? क्योंकि वो फोकस किस पे कर रहा है? फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग व्हाइट कॉलर्ड जॉब्स, जिसमें मैंने पहले भी बात करी थी इसकी कि वो क्या कर रहा है, उसको चाहिए। आप यही बताओगे कि उसके साथ ही अटैच कर दो, लास्ट पैराग्राफ के साथ ही अटैच कर दो कि सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इकोनॉमी ये कह रही है एजुकेशन। हमने रीजन बता रहे थे ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर बता दो रीजन, ठीक है। उसके साथ ही ये वाली एग्जांपल डाल दो। फिर मैं कह रही हूँ एजुकेशन सिस्टम जो है मेरा, हाँ हो सकता है पॉसिबल हो सकता है। मैंने कह दिया एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक मेन पॉइंट है मेरा। क्या मेन पॉइंट है? एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें क्या है, एजुकेशन सिस्टम जो है वो फोकस कर रहा है व्हाइट कॉलर जॉब्स को। फिर जो डिग्री होल्डर्स हैं, डिग्री होल्डर्स आर नॉट रेडी इंडस्ट्रियल फॉर इंडस्ट्री। डिग्री होल्डर्स जो हैं वो ऐसे लोग हैं हमारे पास जिनके पास सिर्फ डिग्रियां हैं और वो इंडस्ट्री में काम ही नहीं कर सकते। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप कह सकते हो देयर इज अ क्राइंग नीड
for the skill in our youth. So that they become employable. Yes, crying need means they are badly in the need of that. हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिग्री होल्डर्स को पैदा करी जा रही है बट स्किलफुल लोग नहीं पैदा कर पा रही है, मतलब जनरेट नहीं कर पा रही है. सो दैट इज वाई वो जो यंग जनरेशन है वो इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर पा रही है. सो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज होके ऐसे लोग लेके आने पड़ेंगे जो लोग इंडस्ट्रीज में काम कर सके, सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं खत्म हो सके. क्लियर? श्रुति यस फाइन, बिल्कुल सही बात है. Should I clear this? Have you jotted down? Okay. ओके, हमने ये लिख दिया. अब हम लिखेंगे, एक तो प्रॉब्लम हमने लिखा कि यस हमने एजुकेशन सिस्टम के अंडर इसको एक्सप्लेन करना है. ये लाइन एजुकेशन सिस्टम के अंडर आ रही है कि जो हमारे डिग्री होल्डर्स हैं दे आर नॉट स्किल्ड. एग्जाम्पल एक बच्चा लिख के मुझे दे रहा है, हरसिमरन प्रीत कौर. That everything here universities are producing thousands of doctors and engineers but they are productive without skills. Yes, सही है. हम बता रहे थे, एक पॉइंट हमने ये बताया एजुकेशन सिस्टम, दूसरा हम बताएंगे पॉलिटिकल एस्पेक्ट. अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल एस्पेक्ट. अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या है, लोगों को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है. क्यों? लोगों को वही है, दे फील लाइक समवेयर करप्शन इज देयर. जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट. पॉलिटिकल एस्पेक्ट में समझ लो क्या है, लिखना खुद ही है आप लोगों ने. सो वी विल से इन्वेस्ट मतलब करप्शन, करप्शन है. ठीक है, you can say people are facing corruption in the in our country. So what is this?
वो क्या है, दे डोंट हैव ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट। उनको गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ही नहीं है। फिर इसके कारण क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स आर नॉट इन्वेस्टिंग। ठीक है, इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। माइट बी वो चाहे यू कैन से लोकल इन्वेस्टर्स हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं चाहे वो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। सो इसके कारण भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। फिर हम, इज इट क्लियर, हमने अब सॉल्यूशंस बता रहे हैं। एक तो हम ये कह रहे हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सेकंड हम क्या बताएंगे, हैव यू नोटेड डाउन पॉलिटिकल एस्पेक्ट? अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम लिखेंगे एजुकेशन सिस्टम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द सॉल्यूशन, यस, इंप्रूविंग एजुकेशन सिस्टम। इंप्रूविंग, वो प्रॉब्लम भी है, वो हमने प्रॉब्लम बता दी। अब इसका सोल्यूशन में क्या है, इसको इंप्रूव करना है, इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। अब हम क्या बताएंगे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, यस वी आर डिस्कसिंग द सोल्यूशन, वी हैव डिस्कस्ड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें करप्शन है, दे आर नॉट क्लियर, दे आर यू कैन सी चीटिंग द पीपल। सो दैट इज वाई जो लोगों के पास पैसा है वो इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं आके। अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो ही नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, कंट्री डेवलप करेगी, नए प्रोजेक्ट्स में लोगों की जरूरत पड़ेगी। सो ऑब्वियसली द पीपल विल गेट द एम्प्लॉयमेंट। फिर हमने बोला, सेकंड रीजन हमने बोल दिया कि हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा अपना एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। किस तरह इम्प्रूव कर, नहीं पहले मैंने बच्चे प्रॉब्लम बताई थी, प्रॉब्लम में भी मैंने ये बताया था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमने सिर्फ एजुकेशन सिस्टम लिख दिया था। अब हम पॉइंट लिख रहे हैं इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। हम प्रॉब्लम क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। अगर वो अच्छा नहीं है तो वो क्या है, वो स्किलफुल लोगों को पैदा मतलब प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा जो इंडस्ट्री में काम कर सके। अब मैं कह रही हूँ सोल्यूशन में हमें अपना एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करना है। कैसे करना है, करिकुलम को रिवाइज करना है। सो फर्स्ट क्या है, करिकुलम को रिवाइज करना है। करिकुलम, you can say you should, curriculum should be revised। करिकुलम को रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टिंग करिकुलम है
That is, yes, existing, existing you can say, अब हम इसको syllabus लिख देते हैं, we'll add the vocabulary. Existing syllabus जो है, that is more theoretical. It is more theoretical, but it needs to be practical. So that after the education, क्या हो, after the education, people should have the skill in their hand, should have the skill in their hand, so that they can earn and support their family. ठीक है, have you written? Should we go with the next topic, मतलब next point? Should I erase it? अब हमने कह दिया एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा. पीपल शुड हैव स्किल इन देयर हैंड सो दैट दे कैन earn their own bread and butter. हम न थर्ड पॉइंट लिखेंगे, नीड ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन.
हमें क्या करना है, बहुत जल्दी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आनी है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव करना है। अगर हम वो करेंगे, people should have some skill in their hand so that they are able to generate employment for them. They are able to work by their own and can earn. ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है नीड ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत जल्दी जल्दी हमें क्या करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्प्रूव करना है। सो स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट। आई एम कमिंग, आई एम विल बी। Hello everyone. No need to sleep. I said just give me a minute. Okay. So need of rapid industrialization. What else? Whether industries need to be improved, there should be manufacturing of everything so that we don't have to import the things. Like see, China is the one जिसने कितनी मतलब इंडस्ट्रियल वो कितनी चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है कि that he is you can say delivering to all the countries. So that is why, no doubt, now there are some problems. Otherwise, they are developing everything. Rather, it is a small thing. Rather, it is you can say even the apps worldwide people are using them and they are earning the money from them. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? If we need to have a good employment in our country, then what we need to do is we need a rapid industrialization so that in उसके साथ क्या होगा, with the new projects people will be having employment and their skill will be used. ठीक है, is it clear? Is this point clear? Will you be able to explain it? I think it's very easy to explain. Yes or no? Yes, something which happened in America. Jyotika, why you are not able to explain? I'm telling you कि we need to focus, yeah, India needs to focus on the industrialized industries so that there should be manufacturing of every product and we should be the exporters rather the importers. So that अगर हम सेल्फ सस्टेन करते हैं, अपनी इकोनॉमी के लिए खुद करते हैं, तो भी क्या होगा कि हमें जो लाइबिलिटी चार्जेस पड़ते हैं वो नहीं पड़ेंगे। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम बिजनेस करेंगे तो हम अर्न करेंगे, ऑब्वियसली हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली नए नए प्रोजेक्ट्स होंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इफ दे विल बी गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट,
then obviously unemployment will reduce. Don't you think so? It is hence proven, I think. Now, what do you people say? Is it, you can say, proven thing or not? You can give the example. There is no issue because China is the one जिसमें सबसे ज़्यादा करा था. Yes, Indian currency will appreciate at international level. Do I understand this? It's nice. You can say this too. Third point. I think third नहीं fourth point आ गया अब तो हमारे पास है ना. अगर मैं लिखूं सोचो हम लिखते हैं मतलब the solutions for this empower rural India. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है. रूरल इंडिया क्या है? बहुत सारे ऐसे हैं जो रूरल प्लेसेस हैं इंडिया में. तो वहां पे क्या है? वहां पे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है ना. वहां पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है. मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत लेस है. कोई फैक्ट्री वगैरह तो होती नहीं है. लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलती. पर बहुत सारी प्रपोर्शन हमारी क्या है वहां पे रहती है. दे आर लिविंग ओवर देयर. सो हमें क्या करना है? टेल मी. टेल मी द पॉइंट्स इन द पॉइंट सेक्शन. हमें क्या करना है? हमारी गवर्नमेंट को क्या करना है? विलेजेस को देखना है, उसको डेवलप करना है. उसमें तो सबसे पहले क्या है? हर फैसिलिटी अवेलेबल हो जैसे कि सिटीज में है. इवन एजुकेशन सिस्टम हो. अगर इतनी फैसिलिटीज लेके आनी है तो इंडस्ट्रीज भी होनी चाहिए क्योंकि लोगों के लिए काम हो. अगर लोगों के लिए काम होगा तभी तो वो सारे एक्सपेंसेस को बेयर अप कर पाएंगे. और वो सारे एक्सपेंसेस जैसे मतलब अगर समझ लो है ना. ऑब्वियसली हम कहते हैं कि लिविंग एक्सपेंसेस आर मोर इन द सिटीज देन द विलेजेस. द ओनली थिंग इज दैट क्योंकि वहां पे यू कैन से कुछ आउटलेट्स ही नहीं है. कुछ भी नहीं है. शॉपिंग के लिए नहीं है. लिमिटेड सी चीजें. तो लोगों के खर्चे भी लिमिटेड होते हैं. बट अगर उन्होंने हर आउटलेट वहां पे लेके आना है. हर चीज लेके आनी है तो ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करनी पड़ेगी. अगर वो ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज में बैठी हुई उनको पावर एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग पावर टू सम. एंड पावर बाय पावर मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आओ. जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आओ. स्कूल खोलो. कॉलेजेस खोलो. so that these all can also contribute to the economy. And ultimately हम क्या कर सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट को we can be the one who can you can say eliminate unemployment up to much extent. Yes, need to reduce regional disparities. Very nice. Any doubt till this? Please answer. If you are able to explain, then answer.
Is it clear, everyone? Any doubt till this? Yes, this can be also the point. Proper implementation of the government schemes and programs. Nay, nay, we are going with another point also. We can say that there should be opportunities for self-employment. Okay, we will explain that there should be opportunities for self-employment. There should be opportunities for self-employment. Yes, entrepreneurship. That means that people should have some sort of their own business, and they should work on that business, and moreover should employ many people into that business so that they can give job to many people. So in this way also opportunity, matlab you can say that they unemployment can be reduced. So what we did is first we explained, first we had an introduction paragraph. Then we said what are the reasons behind this. For every reason we have discussed some points. You need to discuss that points in 3 to 4 lines. After discussing all the, you can say, reasons behind this, then you need to explain the solutions. Solution लो एक point लो उसको explain करो 3 3 4 4 lines में. Then at the end, now it's the time for the conclusion part. I have covered every point from my side. If you are having the points regarding this, what can be the solution? Please list up. Okay, digitalization can also be the solution. Yes, why not? Yes, Shahnaz, we can write this point कि वो seminars वगैरह conduct करे. लोगों को अवेयरनेस दे कि कैसे कैसे प्रोग्राम्स अवेलेबल है, कैसे कैसे दे कैन एम्प्लॉय, they can find out the employment for themselves or they can self employ themselves. ठीक है, कुछ वोकेशनल कोर्सेज जो थे एजुकेशन सिस्टम में वो इसीलिए शुरू करे थे कि लोग क्या है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाए, वो खुद अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ले. बिकॉज गवर्नमेंट नो डाउट इट इज डूइंग, बट स्टिल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं वो क्या है इनकेपेबल हो जाती है. ठीक है, सो दैट इज वाई. अब कंक्लूजन में क्या करोगे? अब कंक्लूजन पैराग्राफ में क्या करोगे? आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, नाउ आई एम वेटिंग फॉर द कंक्लूजन. यू पीपल विल राइट द कंक्लूजन एंड आई विल बी द वन. आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन से 1 2 लाइंस ले लेनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है एंड देयर आर मेनी
you can say reasons behind this such as this and this. अब explain नहीं करने, अब सिर्फ points उठाने हैं. To curb this problem, we are having many solutions also on which we can you can say work upon, and these are this and this. So आपने क्या करना है अब, this is a task for everyone. Please write the conclusion in 4 to 5 lines and then you can say submit it. I would be the one who will be checking it and will be understanding or getting the overview that have you people understood or not. So please do it. Full essay नहीं, you just need to write the conclusion, students. Submit करने की जरूरत नहीं है. I have explained you everything. Write down. You should make one notebook. और उस notebook में आपने जो आज point सारे note down करे हैं उसका खुद से एक paragraph बना के रख लो. You need not to submit that. You just need to have the points for yourself. Okay, but right now I'm saying that post a conclusion paragraph. So you need to do that. Waiting for the conclusion of 4 to 5 lines from everyone, those people who have attended this session. Please write down and I will be the one who will be, you can say, finding out क्या लिख रहे हो आप और आपको कितना समझ आया उसमें. Please start writing, start typing. Conclusion. Shruti, why you missed it? You was not aware that the class will start by 7 in the morning? Thus, from the aforementioned statements, we can conclude that employment is an existential disaster for the nation, but it can be sought out by taking steps as mentioned above. It will boost the economy and India will be a country with a lot of opportunities. Then, how you missed it? Very nice, written by Suman Preet Kaur. सुमनप्रीत, मुझे लगता है आपको ऐसे समझ आया है. Nowadays, there is a problem of unemployment and scarcity of the jobs. Problem of unemployment and scarcity of job is the same thing. आप and करके लिख रहे हो.
वो गलत है मीनू. So people, so the people, so people are jobless. The particular word के लिए use होता है ना. तो people हम common noun है, उसमें the कैसे आएगा? So people are jobless and taking steps, and there should be collective steps taken by the government and the people so that we can have a better India, a better country to live. Welcome, Submanpreet. Gagan Mehra. Unemployment is the major obstacle in the way of the developed country. In the way of unemployment has become the crucial problem since the last few decades. There are many reasons which leads to unemployment, which includes poor education system, political aspects, and etc. This could be overcome by improving the education system, improving the industrial sector, etc. etc. Please don't write the short forms. Write full. etc. शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है. What is the full form of etc.? PERA. This is the full form of etc. So people, is it clear to all of you what you have written, what you have studied today? Will you make notes of it? Will you write a matlab in your paragraph in your notebook? I have written everything on the board, so I don't think that you need to submit it. It's just for yourself. You need to understand it. You need to make the points. You need to write the paragraph so that when your exam is approaching, you can read that. Because अगर हमने कुछ read नहीं करा होगा तो हमारे पास points नहीं होंगे वहां पे लिखने के लिए. So it will be difficult for us. ठीक है? So making it interesting is only the thing that when you are having the content to put in. एक दिन में हम सब पढ़ नहीं पाएंगे. अगर हमारे पास अच्छा लिखा पढ़ा होगा, हमने हाईलाइट करा होगा, हम हल्का सा देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा. नहीं तो एक दिन में इतना पढ़ना बहुत मुश्किल है. ज्योतिका is saying, ma'am, check. To conclude, the unemployment is increasing day by day because of the many things. Because of the many things, because of the many issues, like illiteracy, lack of education system in the rural areas, masses are jobless. Government and industries should give chances to the new jobs for the people. Fine, it's good. Approx 300. Approx 300 words. Sumanpreet, thank you so much for appreciating me. Really, it motivates me to work more hard for you people and come up with the new ideas. Okay, unemployment is the okay, typing error. Big issue of the contemporary world. There are wide range of factors that accounts for why it is happening. In my problem, this problem can be remedied provided some effective measures are taken. I believe that higher authorities must try to stable our economy. Good. So, thanks. Have a nice day.
good wishes for the day. You work more hard, you stay safe, and you study more and enjoy your day. Thank you so much, everyone. You two people have a good day. God bless you all. Really, really feel good having you as my students. Thank you so much, dear. Thank you so much. Thank you, people.